Very good evening to all my students. Today I, Tarun sir, present in front of you all on this online platform, that is Zoom, once again. So students, after approximately 3 weeks, I have decided to conduct this class so that you people can get a wonderful idea that how to solve MCQs, and that too based on English grammar. So let's start the session without wasting time. Question number 1 in front of you all. Yes, here it comes. Here it comes. Everyone will have to participate. The chat box is active for you all. The first question. Her thinking leans dash. Towards. Oh, acha. Her thinking leans Sir, towards towards. democracy. Okay, not a problem. And the chat box में भी बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है. Our thinking leans towards democracy. Okay, so easy one. The first question, preposition, and yes, towards is also a preposition. So the correct answer is option B, towards. We are done with the first question. Moving to the second question. The second question is not that easy, sorry to say. He got tired dash overwork. Confusing one. Sir, A. Sir, because of A. A, because of. First of all, it is not because, it is because. ऐसे बोला करो. हाँ. Sir, sorry, D. Sir, D for. He got too tired for overwork. वाह. Sir, option A. Option A किसी ने बोला. Very good. And the chat box. Khushi Arsala, sorry, Khushi has sent that option A. चलिए जरा आप देखिए. Okay. He got too tired. सबसे पहले तो ऑप्शन बी हटा दो, ऑप्शन सी हटा दो. So a student said that for he got too tired overwork. For overwork, वाह. Because of. This is a reason. This is called phrasal preposition. What is it called? It is called phrasal preposition. चलिए जरा इसको टिक लगा लीजिए. ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. सर, yes, there is a doubt coming up in between. सर वो क्वेश्चन में अगर ओवरवर्क की जगह सिर्फ वर्क हो तो वहां पर फॉर काम करेगा? He got too tired for work. No बेटा, not at all. Reason why? Because अगर आप हिंदी में बोले वो थक गया काम के लिए, बेटा आफ्टर लगा सकते हो, बट फॉर नहीं लगा सकते. आई एम सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन. All phrasal prepositions. Dash his principles. He has to be very careful. Oh. With regard of, option C. Sir, option C. Boys and Sir, option girls. C. Acha, okay. Option C, and I'll have to check the chat box also. Nikhil is also. Option A. अच्छा, चलिए कोई बात नहीं मेरे बच्चों. सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए that with regard of होता ही नहीं है इंग्लिश में. with regard on होता ही नहीं है. तो होता क्या है? This was to confuse you. होता है with regard to. Sir, C. Absolutely correct. जब होता ही यही है सो ये दोनों को आप हटा दीजिए. none of these हटा. ऑप्शन सी यहाँ पे हो गया. with regard to. So this is only the preposition. Rest of them are not phrasal preposition. And the next question is again based on phrasal preposition. चलिए जरा बताइए. सर, Yes, in class. accordance with. Sir, option B. Option B. Accordance with. Option B. Building has been. अच्छा, okay. Building has been built. Dash the new plan. सबसे पहले accordance to नहीं होता है, according to होता है. अगर आप मेरे नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखते चलेंगे, कोई बात नहीं. According to, इसका कोई लेना देना नहीं. ऑप्शन ए. बाय. Building has been built about the new plan. Sorry.
For the new plans, sorry, Sir, option. B only. Okay, good. Option B, in accordance with, is absolutely correct. So this is how phrasal prepositions are. क्या पता अगला क्वेश्चन किसी और टॉपिक पे हो? नहीं, अभी भी preposition पे ही है. He crossed the broken bridge. Dash warning. In spite of warning. Sir, A. Sir, A. First of all, there is no word like this in spite o double f, because in spite के साथ single f लगता है. कौन सा f? Single f. In spite of. ये लीजिए, ये हटाइए. Option A is absolutely correct. Next, verb आ गया. I knew it. Lecture change हो गया एकदम से. And here we come up. Now we are coming up with a question related to verb. The train. Oh my God, very Went. confusing. No. एक Sir, second. C. C. किसी ने Sir, बोल दिया C. C. A. D. I knew it. जैसे ही verb आया, जैसे ही verb आया, सारे बच्चे confuse हो गए. जैसे ही verb आया. Sir, C. Sir, C. अच्छा, wait. Okay, fine. Now it's my chance to actually take care of each and every option. बेटा ing form तभी लगेगा जब यहाँ पर is, am, are, was, were लगेगा. So ये दोनों ऑप्शन को तो प्लीज बाय बाय. अगर लिखा होता था ट्रेन was, तो आंख बंद करके आप ये लिख सकते थे रनिंग, लेकिन कुछ ऐसा है ही नहीं. So 2 options gone. Now this sentence is written in present tense and the correct answer is the train moves. Gone. Option C is correct. Next question. She, oh ho. Present perfect continuous, past perfect continuous. Sir, B. Sir, B. Acha, B. She dash in the sun for 1 hour. Sir, has been sitting. I am waiting for others. I am waiting and the chat box is active. Chat box is active. Yes, excellent. Okay, option B. There are few students who are saying option B. And reason why? Because whenever the time is set, see here the time is specified. So if the time is specified and that too the preposition for or since, अगर for और since लगता है और time specified है for 1 hour, so यहाँ पर लगेगा present perfect continuous. क्या लगेगा यहाँ पर? Present perfect continuous, that is has been sitting. She has been sitting in the sun for 1 hour. So this question is very important for your exam. जैसे ही सेंटेंस में आप for या since देखें तो आप ये been plus ing form of verb use करिए. So the next question goes to everyone. I hope the screen is visible and here it comes. कोई नहीं आंसर इसका सही दे पाएगा. A challenging question. Choose the correct answer from the 4 options. This is the latest pattern that the boards and the school is following. Yes, come on, tell me. Choose the correct answer. Sir, A. Arslan is quick. Arslan is so quick. Arslan is so quick. My God. Look at his speed. अच्छा, A. अक्षत ने भी A बोल दिया, गर्ल्स ने भी A बोला. अब मैं यहाँ पर ढूंढने जा रहा हूँ which is, ओहो, सारे एक जैसे लग रहे हैं. My friend has got a new job. My friend has got a new work. दोनों okay. My friend is got, गलत. My friend did get. Did के बाद आता है first form of verb, तो इसको हटा दो. Did के बाद आता है first form of verb, C और D हटे. अब ये क्या है? Has got a new work. Sorry, job होता है. There is no such sentence as new work. Option A is absolutely correct and students answered it correctly. Very good. Next question. ओहो, challenge. अगर आप गूगल को ना देखें तो शायद ही कोई इसका एंटोनिम बता पाएगा. बाप रे, ये देखिए जरा आप. Sir, obvious.
Sir, obvious. अच्छा, एंटोनिम ऑफ inscrutable. some some ill mannered has entered the session. Some ill mannered has entered the session. Wait, please, let me mute. Okay, fine. First of all, let's see. अगर आपको inscrutable का मतलब नहीं पता तो आप इसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे. मेरी बात समझ गए? So it is very necessary for you to understand what is the meaning of inscrutable. पहले तो मीनिंग बताओ inscrutable का. Inscrutable. अच्छा, inscrutable का मतलब होता है संदेह, mysterious. The meaning of inscrutable is mysterious. अब mysterious का आप opposite ढूंढ लीजिए. Confuse हटाइए, reduce हटाइए, baffling भी confuse से ही relate होता है. And the answer is absolutely correct. Look at the speed of these students. They answered it correctly. Option B, obvious. Obvious का मतलब होता है perfect. It is just opposite this of this term, inscrutable. अब मेरे को अगले वर्ड पे आने दो. कोई नहीं. One more antonym. Shylock के लिए यूज किया गया था वर्ड ravenous. जो लोग बच्चे मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से आ जाएगा. बताइए जरा. सर सी. Greedy. Option C. ऑप्शन सी. अच्छा, सर सी. वेट. एक सेकंड. सी. अब मैं आप लोगों को पहली बात तो मीनिंग बता देता हूं. assuaged का मीनिंग क्या होता है? दिस मीन्स when you will search Google तो आपको यही मिल जाएगा बेटा. ये देखिए जरा, गूगल जिंदाबाद. assuaged, make unpleasant feeling. अच्छा, greedy means ravenous. Thirsty for blood means ravenous. Assuaged means unpleasant feeling. अच्छा, antonym. Now this is something very confusing. Unpleasant feeling. बेटा ये तीनों हटाइए, लिखिए none of these. Sorry to say, none of these. Synonym of ravenous is greedy and इसका antonym होगा fulfilled मेरे हिसाब से. And इसका एंटोनिम होगा satisfied. सॉरी, सिनोनिम. ठीक है, रेवेनियस का मतलब एक तरीके से वेरी हंग्री और ग्रीडी. इसी का एंटोनिम होगा satisfied. लिख लीजिए. चलिए, अब शायद ही एंटोनिम आए, लेकिन दिस इज द लेंथीएस्ट क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूं यहां पर. एक सेकंड रुकिए जरा. हाँ, करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी. अरे पहले मुझे पढ़ने तो दो. बिना पढ़े आंसर दे रहे हैं. द गर्ल इज टेकिंग बिस्किट्स एवरी डे. सही तो है, तो इसको बोल रहे हैं करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी एंड देयर आर 4 ऑप्शन. द गर्ल इज टेकिंग बिस्किट्स. सर बी. ये तो बिल्कुल वही रिपीट कर दिया. दैट मीन्स नो चेंज. द गर्ल टेक्स. Option B. अच्छा, ऑप्शन बी. सभी लोग यही बोल रहे हैं. कम ऑन, रेस्ट ऑफ यू कम इनटू द पिक्चर. चैट बॉक्स में केवल एक बच्चा एक्टिव है, दैट इज खुशी. खुशी इज एक्टिव इन द चैट बॉक्स. अरसलान ने बी बोला. ओके. श्रिया बी, प्रियांशी बी. एब्सोल्यूट ओके. एवरीडे की बात हो रही है और ये रहा प्रेजेंट टेंस. एब्सोल्युटली करेक्ट. बाकी सारे ऑप्शंस काट दीजिए. दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. The girl takes biscuits every day. मेरी बात समझ गए? ओहो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मिल्क आ गया. ओहो, वो मिल्क में लगा है टेक्स. तो क्या इसमें करेक्शन की जरूरत है? यस और नो? लेकिन मैं तो सारे ऑप्शन पढ़ूंगा पहले. नो सर. बेटा इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी आंसर नहीं दीजिए. He takes milk every day. He takes milk every day. क्या यही होगा? He is taking. ओहो, he is taking.
ही इज, सी वाला ऑप्शन काट दीजिए, एकदम गलत। बचे ये दो ऑप्शन, वेरी कंफ्यूजिंग। नन ऑफ द अबव काट दीजिए ए एंड बी के बीच में। सो द करेक्ट आंसर इज नो चेंज, ऑप्शन ए, नो चेंज। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जरा अब इसको हटाइए। डू वी हैव अनदर क्वेश्चन लाइक दिस? एंड यस वी हैव। इसी तरीके से आपके टेंसेस की नॉलेज बढ़ जाएगी। चलिए जरा। सर ए। Akshat is so C. quick. C. Akshat is so quick, and Arslan has contradicted Akshat. Arslan has contradicted Akshat by saying C. So let me see क्या सही है। I am studying every morning from. अच्छा रुक जाओ। I am. अरे पहले देखने तो दो। I am studying every morning from 5 to 8. तो अक्षत ने बोला कि कोई चेंज नहीं। अच्छा, सेंटेंस सही, थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। I have been studying every morning, गलत, इसमें since लगना था, ये भी गलत। I study every morning, क्योंकि every लगा है, this is the reason study लगेगा। Option C is यस सर, इसीलिए लगेगा। absolutely correct. You can write down the concept. In case if this word would not have been used, that is every, कुछ ना कुछ changes हो जाता, I am damn sure. कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है। एंड लुक एट द चैट बॉक्स, इट इज एक्टिव लाइक एनीथिंग। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज ईटन द होल स्क्रीन। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस और नो? सर ए। A vegetarian is a person who never eats meat. बेटा गलत, रुक जाओ। Is a person who is never eating meat, गलत। A vegetarian is a person who never is eating meat, गलत। None of the above, गलत। And chat box active हो गया। Write down no change. No change. This is actually called how to apply a helping verb. A vegetarian followed by singular helping verb who never eats, ये रहा verb। और कई बच्चे स्पीकिंग में क्या बोलते हैं? who never eat। 100% अगर स्पीकिंग की क्लास चल रही होती तो बच्चा यही बोलता who never eat meat। यही काम आता है टेंसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म द, ओहो अब गए काम से। टफेस्ट लेक्चर स्टार्ट्स। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव। जब बच्चों को असर्टिव ही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? मैं बताने जा रहा हूं। assertive sentence, अरे सुनो, assertive sentences, write down, assertive sentences are those sentences which give or make simple statements। assertive sentences are those sentences, लिखते रहो बेटा, फिर नहीं कहना कि पढ़ाया नहीं गया। are those sentences which make simple and clear statements। तो भाई assertive में ना तो क्वेश्चन मार्क लगता है ना तो एक्सक्लेमेटरी, तो काटना शुरू करिए। क्वेश्चन मार्क कटा, क्वेश्चन मार्क कटा, एक्सक्लेमेटरी मार्क गया। ऑप्शन सी, द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस, पर्सोनिफिकेशन हो गया ये तो। द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। And there are few lazy students who do not bother to even unmute themselves. What do you think of yourself? Damn it. Should I take your name? What have you come for? आ गए बस, लॉगिन कर लिया, ना आंसर देना है चैट बॉक्स में, ना अनम्यूट करना है। डम्बोज। Okay, next question again, transformation. Transform the following sentence into a simple sentence. अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले मैं लिखाऊंगा। सिंपल सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, विदाउट अ कंजंक्शन। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंजंक्शन इन अ सिंपल सेंटेंस। एंड कोई नहीं ढूंढ पा रहा है, मुझे पता था। सर बी, she told that she was coming। B गलत, दैट लगा है। नो बेटा, नो। B। Okay.
बेटा पहली बात तो Sir, डी, हाँ अरे जब मैं बोलने लगता हूं तो क्यों बोलते हो? डी हैज अ कंजंक्शन, हटाइए। विल के लगने से सेंटेंस का मतलब बदल गया, सॉरी। शी इज कमिंग, गलत। तो सेड कहां गया? ऑप्शन सी, किसी ने नहीं बोला। आई न्यू दिस, ओनली आई एम करेक्ट। शी टोल्ड ऑफ हर कमिंग। सर डी क्यों नहीं है? सर डी क्यों नहीं है? बेटा लिखो लिखो लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, राइट डाउन लिखो। सिंपल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस, लिखना पड़ेगा किसी भी हाल में। सिंपल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस which do not contain a conjunction that is a conjunction। हट गया। फ्यूचर टेंस, ये पास्ट टेंस है, हट गया। ये पास्ट टेंस है, इज हट गया। तो बचा क्या? शी टोल्ड ऑफ हर कमिंग। ऐसी इंग्लिश सुनी ही नहीं होगी, तभी तो आंसर नहीं दिया सी। बिल्कुल सही इंग्लिश है। शी टोल्ड ऑफ हर कमिंग। और टोल्ड पास्ट टेंस, ये लीजिए पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। किसी ने भी सी नहीं लिखा, आई एम सॉरी टू से। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा गुड 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 गुड। ये लीजिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ स्टूडेंट solve, I am sorry, not a student, I am making students solve such a question जहां पर adjective में बदलना है। Adjectives are those which describe the quality of a noun and a pronoun. She treated me respectfully, तो respectfully adverb है, इसको change करिए adjective में। ओहो सर सी, सी सर सी। दो बच्चों ने सी बोला, दो बच्चों ने सी बोला। एंड अरसलान इज सो क्विक इन द सेशन, अमेजिंग, अमेजिंग टू सी हिम। अच्छा, नाउ इट्स माय चांस। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्टफुली से ly हटा दो, बस वही आंसर होगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एमसीक्यू। गलत गलत गलत, ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत ही नहीं। ly जैसे वर्ड से सॉरी एडवर्ब जैसे वर्ड से आप ly हटा देंगे तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव। ये लीजिए आंसर आपके सामने। हाँ लेकिन एग्जाम में क्या पता आपको 2 से 3 सेंटेंस में रिस्पेक्टफुल मिले तो फिर भाई आई कैन नॉट हेल्प इट, आपको फिर अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। शी वॉज रिस्पेक्टफुल टू मी। रिस्पेक्टफुल हियर स्टैंड्स फॉर क्वालिटी ऑफ अ नाउन, क्वालिटी ऑफ अ नाउन। चलिए जरा अगला पे आते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? चेंज इनटू नेगेटिव। अच्छा, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। ह्यूमन इज मॉर्टल। सर ए। नेगेटिव के लिए हम लोग सर, ए। लगाएंगे नॉट। सब लोग पहले आंसर दे लो। यस, जल्दी करिए मुझको। ओके जल्दी जल्दी करिए, मुझको मैच देखना है। ह्यूमन इज मॉर्टल। सर बी ओनली। बी गलत। बी सही है पक्का? Yes, sir. वेरी नाइस, एकदम सही। सर सही है बी। बेटा नौ, लेकिन कुछ बच्चे इसमें एक ऑप्शन नहीं है, वरना आप लोग पक्का कंफ्यूज हो जाते। और वो ऑप्शन है ह्यूमन इज नॉट मॉर्टल। 90% बच्चे अभी यही आंसर भरते, जो कि गलत है। ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल। ह्यूमन इज नॉट मॉर्टल एंड ह्यूमन इज मॉर्टल। क्या बेटा? सर ये समझ नहीं आ रहा ये वाला। नहीं है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ढंग से सुनना। ह्यूमन इज नॉट मॉर्टल। कौन, किसको लगता है कि ये वाला ऑप्शन सही है नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए? जल्दी बोलो तभी समझाऊंगा। No, sir, wrong है। मैं कह रहा हूं किसको सही लग रहा है तो बकवास बीच में करने लगे। किसको सही लग रहा है वो बोले। हैं? अरे अभी कुछ बच्चे कह रहे थे सर समझ नहीं आ रहा, बेवकूफ हो क्या? अब बोलो किसको ये सही लग रहा है यार। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज whenever these people ask you to transform a sentence into negative, never change its meaning। अगर आपने लिख दिया human is not mortal तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। मतलब आपने ये इनडायरेक्टली बोल दिया कि ह्यूमन बीइंग्स मरेंगे नहीं कभी। आपको बोलना है नॉट इमॉर्टल।
इक्वल टू हो जाएगा मॉर्टल, और ये रहा मॉर्टल। नेक्स्ट, ओ सॉरी डी वाला नहीं हो सकता बेटा, बी, हाँ बी आंसर है बेटा, बी आंसर है। किसने बोला? बी आंसर है, मैं खुद बोल रहा हूँ बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। नॉट ऑल ह्यूमंस आर, नो 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 नो, उसके लिए जरूरत ही नहीं है सब लिखने की, समझ गए क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा ही नहीं है ना कुछ ऐसा, नॉट ऑल या ओनली टू, बोथ। हाँ सर, ऐसा मतलब जाए कुछ लोग इमॉर्टल भी हैं। यस, वो गलत हो जाएगा। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट, उसमें ओवर स्मार्ट में नंबर ऐसे ही कटते हैं। ओके क्लास, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। Thank you, बाय sir. सर। Good night. Thank you, sir. बाय बाय बेटा।